ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ਦੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ। ਚੌ ਯੁੱਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਚਾਰੇ युग ये एक ऐसी श्रृंखला है जो समय ते खड़ी है, मनुख दे मानसिक मंडल ते विचारां ते खड़ी है। समय दे युगां दी तब्दीली ये एक मनोत पुरानी है, इनू मिथ भी कह सकते हैं। अस्थान दे युगां दी मनोत जैसे किसी थां ते कथा कीर्तन हो रहा है, वो जगह सतयुग है, वो जगह बैकुंठ है। कहो कबीर कहिए काय साध संगत बैकुंठे आए। जिथे सत्संग हो रहा है बैकुंठ है, जिथे सत्संग हो रहा है सचखंड है, जिथे सत्संग हो रहा है सतयुग है। इते अस्थान दे पर तीसरी घटना जो है मानसिक मंडल दे ये विज्ञानक है, सच्चाई है, एक तथ्य है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग मनुख दियां मानसिक अवस्थावां ने। इक्को ही समय विच घर दे 10 जियां दे चों कोई सतयुग दे जी रहा होवेगा, कोई त्रेते दे जी रहा होवेगा, कोई द्वापर दे जी रहा होवेगा और कोई कलयुग दे जी रहा होवेगा। मनुख नूं वेख के असी कह सकते हैं ये तो सतयुगी जीव है, और मनुख दी तर्जे जिंदगी व्यवहार आचार नूं वेख के असी कह सकते हैं ये तो निरा ही कलयुगी जीव है। ये ठीक है, सनातन मत दे भी और गुरमत दे अंदर भी युगां दा शरीर रूप भी मन लिया गया है। जैसे कहानियां आउंदियां ने, कबीर नूं कलयुग मिलिया, गुरु नानक नूं कलयुग मिले, मरदाने नूं कलयुग मिलिया, फलानी थां ते कलयुग प्रगट होया। कलयुग नूं एक व्यक्ति मन लेना ये मिथ है, पर पुराना एक ढंग सी बयान करन दा। जैसे बुराइयां नूं ही शैतान आखिया जांदा है, पर इस्लाम दे शैतान दा एक वजूद मन लिया गया, उसका एक आकार मन लिया गया, शैतान नूं एक व्यक्ति मन लिया गया। दरअसल शैतानियत शैतान ये ते बुराइयां, ये ते जो औगण ने। इसी तरीके दे नाल देव बिरतियां, पवित्र बिरतियां, प्रकाशमयी बिरतियां जिस दे अंदर चलदियां ने वही देवता, और जो औगण हारा है, अचेत ते अंधकार दे जी रहा है वही राक्षस है। वास्तविक ये एक सच्चाई है। देवता होना, राक्षस होना, शैतान होना, भगवान होना ये मनुख दे मन ते आधारित है। इक्को ही समय कोई शैतान हो सकता है, कोई भगवान का रूप हो सकता है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है इक्को ही व्यक्ति सवेरे ते
ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਓ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਏ। ਯੁਗ ਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਕਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਲਕਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੈਰੂਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਜੁਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਅੱਗੇ ਲਕਸ਼ ਧਰਮ ਸੀ। धर्म तो मुराद सच्चाई, धर्म तो मुराद परमात्मा, धर्म तो मुराद ईश्वर, सच। जीवन ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਐਸਾ ਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। त्रेते रथ जते का, जोर अगे रथवाओ। जिंदगी दा लक्ष्य
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ 1000 ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ 4-4 ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, 8-8 ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, 10-10 ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 10-10 ਸਿਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦਹ ਸਿਰ ਰਾਵਣ ਨਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 10 ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦਹਿਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਇਤਨੀ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ 1000 ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। अगर 1000 हथ ने तो शरीर भी पहाड़ जैसा होगा, अगर 10 सिर ने तो शरीर भी हाथी नालों भी कई गुणा वड्डा होना चाहिए। नहीं, 10 सिरां जैसी चेते शक्ति, 10 सिरां जैसी सोच शक्ति, 10 सिरां जैसी विचार शक्ति जिस दे अंदर सी, असी उसनों दह सिर आख्या, 10 सिरां वाला। और ਜਿਹਦੇ 2 ਹੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਬਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ 2 ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਨੇ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ जोर अगेर अथवा, तो फिर ताकत ते तां ही हो सकती है शरीर दे जती होवे, और बाहर भी ताकत मनुख तां वधा सकता है संजम नाल चलन वाला होवे, सोच के चलन वाला होवे। तो जीवन दा लक्ष्य जद ए बन जाए पहलवान ही होना है, तो फिर जत ही उसका साधन बनेगी। बहुगिणती दे जद जीवन का लक्ष्य ये बन जाए तो फिर वो त्रेता युग है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रथवा। इथे सत तो मुराद उच्चा आचरण इखलाक, सत तो मुराद सच नहीं है। वास्तविक इथे सत दे अर्थ आचरणशील होना, आचारशील होना, सुंदर आचरण वाला। पर बिना तप तो ते नहीं हो सकता। ते तप की इंद्रियां दा दमन, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਤ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਆਪਰ, ਦੂਜਾਪੁਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਜਦ ਕੂੜ ਮਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ तो तृष्णा उसकी प्राप्ति का साधन बनती है। तृष्णा लो ही नहीं तो फिर तरह तरह के पदार्थों की प्राप्ति किवें करेगा। संतुष्ट है तो प्राप्त कर भी नहीं सकता। तृष्णा झूठ नूं प्राप्त करने का साधन बनती है, उपराला बनती है। कूड़ किसनों कहते ने, जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे ते पकड़िए हाथों निकल जाए। जगत स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ चलायमान है। इस वास्ते इसनों कह देता है कूड़, झूठ। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहते ने, सब कुछ कूड़ ही कूड़ है। क्यों? किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलन हार। किसनों पकड़िए, सब कुछ चलायमान है। ना इत्थे दिन टिके होया है, ना इत्थे रात टिकी हुई है, ना इत्थे बचपन टिके होया है, ना इत्थे जवानी टिकी हुई है, ना इत्थे बुढ़ेपा टिके होया है। दिन नहीं टिकया, रात नहीं टिकी, जीवन नहीं टिकया, तो फिर कुछ भी टिकया होया नहीं है। सब कुछ चलायमान है। जो चल रहा होवे ते चलायमान होवे, उसे नूं कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है। पकड़न की कोशिश करांगे, हथों निकल जाएगा। दिन नूं पकड़न की कोशिश करिए, गया। रात नूं पकड़न की कोशिश करिए, गई। इस तरह जवानी नूं पकड़न की कोशिश करिए, हथों निकल जाएगा। जीवन हथों निकल जाता है। जो हथों की पकड़ दे च ना आवे, जैसे पवन नूं पकड़न की कोशिश करिए ते हथां दे च बंद करिए, मुट्ठी दे बंद करदे ही हवा निकल जाती, पवन गई। जो पकड़ दे च ना आवे, चलायमान है, उसनों चंचल आख्या है, उन्हों कूड़ आख्या है। पर जीवन का लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन की प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे, बस एक कूड़ चाहिए, यही संसार चाहिए। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते फरमान पे कर देने, वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा प्रबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देण की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरबाणी कहंदी है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण की भावना होवे ते लैके ही खुशी मिलती होवे, बस उसे नूं आख्या गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है। दिते नालों लिता चंगा, मनमुख एवें जानी। किस तरह जानोगे? मनमुख है जिसकी सारी खुशी लैण दे च खड़ी है। जद किधरे देना पै जाए औखा होंदा है, दुखी होंदा है, परेशान हो जाता है। पर जिथों किधरों लेना पै जाए और मिले, खुश होंदा है, प्रसन्न होंदा है। लेना खुशी है, देना दुख है। ये लोभी दे लक्षण ने।
ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ तो ऐसा जीव महान है। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚ ਹੈ तो लोभी। अगर कूड़ झूठ पदार्थ संसार ही जीवन ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ तो प्राप्ति ਦਾ ਸਾਧਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਕੂੜ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕਦ ਸਿਆਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। जैसे ये अनुभव है, भीड़ जिस पासे चल रही होवे कल्ले नूं उसे पासे चलना पैंदा है, या फिर पूरा संघर्ष करे। देखण दे चाहे भगत ते अवतारां दी जिंदगी बड़ी संघर्ष दे चलंगी, क्योंकि जिस पासे भीड़ सी अवतार उस पासे चलण नूं राजी ना होए, और अवतार दा मतलब सी भीड़ दा रुख मोड़ीए। रुख दे मुड़दे ही लक्ष बदल जाता है, और भीड़ आखिर संघर्ष ते उतारू होवे तो अवतारां नूं सूली ते चढ़ना पैंदा है, अवतारां नूं तत्ती तवी ते बैठना पैंदा है, अवतारां नूं पिंजरियां विच कैद होना पैंदा है। हैरानगी है कि जगत दे जितने चोटी दे सतवादी ने उन्हां नाल संसार ने बड़ा अन्याय किया है, संसार ने बड़ी बेइंसाफी की थी। वास्तविक पागलों की भीड़ विच जो जितना सियाणा होवेगा उतना ही पागल कहलाएगा। दूर क्यों जाओ, इस भीड़ ने कह दिता सी गुरु नानक नूं। सतगुर आप कहते ने, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। ए विचारा नानक भूतना हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया। भीड़ ने ते गुरु नानक जैसी अजीम शक्ति नो, महान आलम नो, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर नो, रब्बी चिंतक नो, प्रभु दी मूर्ति नो भूतना कह दिता। हैरानगी है, जो सारियां दे भूत ने उतारन आया है, जगत उसनू भूतना कहता है। जो हर एक दी जिंदगी नू ताल देण लई आया है, जगत उसनू बेताला कहता है। ऐसा क्यों? भीड़ तृष्णालुआं दी है, भीड़ मायाधारियां दी है। ते मायाधारी किसनू कहोगे? जिस दी जीवन दा लक्ष्य संसार है, पदार्थ है, जी रहे है पदार्थां दी खातर, जी रहे है संसार दी खातर। तो संसार वड्डा हो गया, पदार्थ वड्डे हो गए, धन ही महान हो गया। ये जीवन ते कुछ भी नहीं है। जीवन उस दिन महान बनता है जद लक्ष्य इस जीवन तो उच्चा होवे, तो वो परम जीवन ही हो सकता है। ते परम जीवन परमात्मा ही है। जिन्ने चिर तक जीवन का लक्ष्य परमात्मा ना होवे, उतने तक मनुख उच्चा नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। तो ये
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਖੜੇ ਸਤਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਚਾਈ ਦੇ ਆਇਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ। तीसरी अवस्था जवान हो गया, चौथी अवस्था बुढ़ा हो गया। इन्हां चार पड़ावां तो एक मनुख नूं लगना पैंदा है। गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। बिरध इंसान दी अपनी तर्ज़े जिंदगी है, जवानी दा अपना ढंग है, बच्चे दी अपनी दुनिया है और गर्भ काल दे बच्चे दी अपनी अवस्था है। इस हिसाब दे नाल अगर युगां नूं वेखीए, सतयुग गर्भ काल दी अवस्था है, त्रेता बचपना है, द्वापर जवानी है, कलयुग बुढ़ापा है, बुढ़ा युग है। अगर सच्चाई नूं वेखना होवे, बच्चे नालों, गर्भ काल दे बच्चे नालों, खिडौणियां नाल खेडदे होए बच्चे नालों और जवान नालों बुढ़ापा इस वास्ते महान है कि उसदे कोल जिंदगी दे तजर्बे आउंदे ने, उतार चढ़ाव दा सारा बोध आउंदा है। शायद इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग नूं महान आख दिता है। सतयुग त्रेता द्वापर भणिए, कलयुग उत्तम जुगा माही। ये युग उत्तम युग है, क्यों? सियाणा युग है। और ये गल ते मन्नी परमन्नी है, इस युग दे जितनी सियाणप उजागर हुई है, जैसे जैसे पिछे जाओगे उतनी नहीं सी। ये जो चार युग ने, गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी ते बुढ़ेपा, इन्हां दे अपने अपने अवतार ने। उसनों गुरबाणी अपने ढंग नाल बयान कर दी है और इसनों वाकई सच्चाई दे रूप विच, हकीकत दे रूप विच असी देखीए ते समझण दी कोशिश करिए। चार युग मनुख दे जीवन दियां चार अवस्थावां, गर्भ काल दी अवस्था, बचपना, जवानी और बुढ़ेपा। सतयुग गर्भ काल दी अवस्था सी। गर्भ काल दा बच्चा मां दे स्वासां नाल श्वास लैंदा है। मां जो खांदी है उसकी ओही खुराक है, मां जो पींदी है बस उसका ओही पान है। स्वतंत्र रूप दे उसका खान पान नहीं है। सतयुग दे मनुख पहाड़ां दियां कंदरां थले या रुखां थले रहिंदा सी। प्रकृति जो दे रही सी फल फुल ओही खा लैंदा सी। अपनी तरफों कोई भोजन बनाना और उन्होंने सवारना, ये अजे मनुख ने नहीं सीखिया और लोड़ भी नहीं सी। अबोध सी, लेकिन एक विचारधारा भारत दे मनीष ने मनी है कि गर्भ काल दा जो बच्चा है वास्तविक उस हालत दे च है जिस हालत दे च एक योगी समाधि दे चाहुंदा है, एक ब्रह्म ज्ञानी समाधि दे चाहुंदा है। समाधि दे जो आनंद आउंदा है वही आनंद उस कोल है, वही रस उस कोल है। फिर जीवन भर उसे ही आनंद नूं ओ लभदा है। ये आनंद स्वभाव किस नूं प्रकृति ने ही प्रदान किया है। निश्चिंत है, चिंता रिज़िक दी आउंदी है,
तो मां ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜ